جنگل میں ایک بوڑھی چڑیا رہتی تھی جس کے پاس ایک بکری تھی۔ بوڑھی چڑیا اپنی بکری کا دودھ بیچتی اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتی۔ میری سویٹو بکری، میں آپ کے لیے تازہ تازہ گھاس لے کر آئی ہوں۔ ماں جی، اگر کہیں سے کوئی پھل ملے تو وہ بھی لے آنا۔ کئی دن ہو گئے میں نے میٹھا پھل نہیں کھایا۔ اگر میں میٹھا پھل کھاؤں گی تو میرا دودھ اور بھی میٹھا ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں ضرور لاؤں گی۔ تم اس پیڑ کے نیچے ہی کھڑی رہنا، اور ہاں، کہیں ادھر ادھر مت جانا۔ جنگل میں بھوکے شیر اور بھیڑیے جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ بوڑھی ماں اپنی سویٹو بکری کے لیے چارہ لینے چلی جاتی ہے۔ کالی کوی، تم نے کئی بار مجھ سے وعدہ کیا کہ تم میرے لیے ماंس لے کر آؤ گی، لیکن ہر بار جھوٹی نکلی۔ لومڑی موسی، کیا کروں؟ کوئی پکشی میرے جال میں پھنستا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پشو میری بات مانتا ہے۔ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں۔ گفا کے پاس ایک بڑھی چڑیا رہتی ہے، اس کے پاس ایک بکری ہے۔ اگر تم کسی طرح اس بکری کو میرے پاس لے آؤ تو میں تمہیں عمر بھر میٹھے پھل دوں گی۔ لومڑی موسی، میں جاتی ہوں اور اپنی پوری کوشش کرتی ہوں۔ گوری کوی اڑتی ہے اور گفا کی طرف جاتی ہے۔ بوڑھی ماں چڑیا کی سویٹو بکری پیڑ کے نیچے کھڑی تھی۔ بکری بکری، تیری مالکن کہاں ہے؟ میری مالکن میرے لیے تازہ چارہ لینے گئی ہے۔ وہ بوڑھی چڑیا تمہیں کیا دے گی؟ سوکھی گھاس یا پھر پیڑوں کے پتے؟ میرے پاس ایک بکری ہے، میں اپنی بکری کو ہر روز مٹھائیاں کھلاتی ہوں۔ آج میں اپنی بکری کے لیے لڈو لے کر جا رہی ہوں۔ ایک بکری لڈو کھائے گی؟ کتنی بھاگیشالی ہے وہ بکری جو آپ کے پاس رہتی ہے۔ صرف لڈو نہیں، میں دن میں ایک بار اپنی بکری کو مٹھائی کھلاتی ہوں، دوپہر کو میٹھے پھل اور شام کو برگر پیزا بھی کھلا دیتی ہوں اپنی بکری کو۔ برگر اور پیزا؟ یہ تو انسانوں کے بھوجن ہے۔ جب میں انسانوں کے پاس تھی تو انسان ہر روز پیزا کھایا کرتے تھے۔ تب سے میری برگر اور پیزا کھانے کی اچھا ہے۔ گوری کوی دور سے ہی بوڑھی چڑیا کو آتا ہوا دیکھ لیتی ہے۔ بکری بکری، وہ تمہاری بوڑھی مالکن آ رہی ہے۔ اب میں جاتی ہوں، کل آؤں گی اور آتے ہوئے تمہارے لیے برگر پیزا لے آؤں گی۔ ہاں، لیکن اپنی بوڑھی مالکن کو مت بتانا۔ گوری کوی ایسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بوڑھی چڑیا ماں اپنی بکری کے سامنے گھاس رکھتی ہے اور بکری اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی ہے۔ نہیں کھاؤں گی، ایسی گھاس تو میں نے کل بھی کھائی تھی، ہر روز یہی گھاس۔ میری بکری، بکریاں گھاس ہی تو کھاتی ہیں، یہ گھاس آپ خود کھا لیں، میں نہیں کھاؤں گی۔ کالو، اگر تھوڑی دیر وہ بوڑھی چڑیا نہ آتی تو بکری میرے جال میں پوری طرح پھنس چکی تھی۔ گوری، کیا وہ بکری کل تمہارے ساتھ چلی جائے گی؟ اگر لومڑی کو وہ بکری مل جائے تو لومڑی ہمیں ہر روز میٹھے میٹھے پھل دیا کرے گی۔ کالو، کوشش تو بہت کر رہی ہوں، اب دیکھو کل کیا بنتا ہے۔ دوسرے دن گوری کوی پھر سے بکری کے پاس چلی جاتی ہے۔ کوی، یہ کیا، آپ تو خالی ہاتھ آ گئی؟ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے سوچا تھا آپ میرے لیے برگر اور پیزا لاؤ گی اور ساتھ مٹھائی بھی۔ تم نے ٹھیک سوچا بکری، لیکن میں یہ ساری چیزیں یہاں نہیں لا سکتی تھی۔ میں نے تمہاری دعوت کا بندوبست کر لیا ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ لیکن کہاں؟ مجھے کہاں جانا ہوگا؟ میری مالکن نے مجھے اس پیڑ سے دور جانے سے منع کر رکھا ہے۔ تاکہ تم کوئی اچھی چیز نہ کھا لو، تمہاری مالکن جلتی ہے تم سے۔ اگر کچھ اچھا کھانا ہے تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ بکری تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہے اور پھر گوری کوی کے ساتھ چل دیتی ہے۔ گوری کوی آگے آگے اور سویٹو بکری پیچھے پیچھے۔ گوری کوی بکری کو لے کر لومڑی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کوی کوی، یہ کون ہے؟ لمبے منہ والی، یہ کوئی بکری تو نہیں ہے؟ یہ میری سہیلی ہے، اس کے گھر میں تو رکھی ہیں میں نے کھانے والی چیزیں۔ چلو سب وہاں جا کر پارٹی کرتے ہیں۔ تم دودھ دینا، میں چائے بناؤں گی اور پھر چائے کے ساتھ پارٹی چلے گی۔ بکری بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کالی کوی، اچھا ہوا جو تم مجھے ساتھ لے آئی،
ورنہ मेरी बूढ़ी मालकिन इस वक्त मुझे सूखी घास खिला रही होती। सुन रे बकरी, अब सहेली हो तुम मेरी, मुझे काली कौवी मत कहा करो, मुझे बुरा लगता है। मेरा नाम गोरी कौवी है। अब चलो भी, सारी चीजें ठंडी हो जाएंगी। बर्गर और पिज़्ज़ा हमारा इंतजार कर रहा है। मेरे पास तो अवन भी नहीं है जिसमें मैं पिज़्ज़ा गर्म कर सकूं। काली कौवी और लोमड़ी मासूम बकरी को साथ लेकर चलती हैं। रानो चिड़िया ऊंचे पेड़ पर अपना तिनकों का घोंसला बना रही थी। ये गोरी कौवी और लोमड़ी इस बकरी को कहाँ ले जा रही हैं? मैं इनका पीछा करती हूँ। रानो चिड़िया लोमड़ी, बकरी और कौवी के पीछे लग जाती है। वो सब लोमड़ी के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। बकरी बकरी, तुम यहाँ खड़ी होना, मैं अभी आती हूँ। लोमड़ी, बहन लोमड़ी, मेरे साथ आओ और मेरी बात सुनो। कौवी लोमड़ी को एक तरफ ले जाती है। लोमड़ी लोमड़ी, आगे का काम तुम्हारा। अब तुम इसे अपने घर में ले जाओ और ले जाकर इसे मार डालो। और अपना वादा याद रखना, हर रोज मेरे लिए मीठे फल लेकर पुराने कुएं के पास पहुंच जाना। लोमड़ी अपना वादा हमेशा पूरा करती है। जंगल के ऊंचे पेड़ और छुपी हुई बेलें मैं हर जगह से फल ढूंढ लेती हूँ। चिंता ना करो। रानो चिड़िया गोरी कौवी और लोमड़ी की बातें सुन लेती है। रानो चिड़िया जल्दी से बकरी के पास जाती है और उसके कान में सारी बात बता देती है। बकरी, जल्दी चलो यहाँ से। अगर इस कौवी की बातों में आई तो जान से जाओगी। वो लोमड़ी तुम्हें मारकर खाना चाहती है और वो कौवी उसकी सहेली है। ये सुनकर बकरी के तो कान खड़े हो जाते हैं। बकरी तुरंत पीछे मुड़ती है और छलांगे लगाती हुई वहां से भाग जाती है। बकरी बकरी, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन बकरी पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधी अपनी बूढ़ी मालकिन चिड़िया के पास आकर ब्रेक लगाती है। बच गई। अगर वो चिड़िया मुझे सच्ची बात ना बताती तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। सूखी घास ही अच्छी, मैं नहीं खाऊंगी बर्गर पीसे। जान है तो जहान है। ऐसे चिड़िया स्वीटो बकरी की जान बचा लेती है और गोरी कौवी की चालाकी काम नहीं आती। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा दोनों नदी के पास बैठे हुए थे। कुकू कुकू, आधे पैसे तुम डालो और आधे मैं डालता हूँ। हम उड़ने वाला जहाज लेते हैं। खिलौना जहाज लेकर हम दोनों खेलेंगे। अगर तुमने लड़ाई की तो नहीं, इस बार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। फिर कुकू और जग्गू अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, 100 रुपए में नहीं आएगा उड़ने वाला जहाज, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? मम्मा, हम दोनों मिलकर लेंगे, कुकू और मैं आधे आधे पैसे डालेंगे। हाँ जग्गू, अगर ऐसा है तो फिर कुकू से आधे पैसे ले लेना और फिर बाद में जहाज अपने घर ले आना। घर के पास ही खेलना। मम्मा, ये तो मैंने पहले से ही सोच रखा है। कुकू बेटा, जग्गू को आप जानते ही हो, वह जरूर धोखे से आपसे आधे पैसे लेगा और बाद में लड़ाई शुरू कर देगा। नहीं मम्मा, इस बार जग्गू ने वादा किया है। पहले भी तो कई बार उसने आपसे वादे किए हैं, लेकिन कुकू जिद करता है और अपनी मम्मा से 100 रुपए ले लेता है। दोपहर के बाद दोनों दोस्त बरगद के पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। कुकू, क्या तुम पैसे ले आए हो? हाँ, मम्मा मान नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मनाया मैंने मम्मा को। चलो अब हम कबूतर चाचा की दुकान से जाकर उड़ने वाला खिलौना जहाज लेते हैं। फिर दोनों दोस्त कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। अंकल, हमें उड़ने वाला खिलौना जहाज दे दे। 200 का है, क्या पैसे भी हैं तुम्हारे पास? हाँ अंकल, हम दोनों ने मिलकर लेना है। 100 रुपए मेरे पास है और 100 रुपए जग्गू के पास। फिर जग्गू कौवा और कुकू अपने अपने पैसे अंकल कबूतर को दे देते हैं और कबूतर अंकल उन्हें उड़ने वाला जहाज दे देता है। कुकू, यहाँ नहीं, हम इसे मेरे घर के पास जाकर उड़ाएंगे। नहीं, मेरे घर के पास मेरी मम्मा भी देखेंगी। नहीं, मेरे घर के पास। ऐसे कहते हुए जग्गू जहाज लेकर उड़ता है। दोनों कुकू और जग्गू के घर के पास पहुंच जाते हैं और जग्गू रिमोट कंट्रोल से जहाज उड़ाने लगता है।
मुझे भी उड़ाने दो। रुको, अभी रुको, तुम्हें चलाना नहीं आएगा। मैं तुमसे अच्छा उड़ा सकता हूँ। चुप कर जाओ, 100 रुपए क्या दे दिया? तुम तो इस खिलौने जहाज के मालिक ही बन गए हो। जाओ, मैं नहीं उड़ाने दूंगा, ये मेरा है। कुकू रोने लग जाता है। तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि मिलकर खेलेंगे। तो मिलकर ही तो खेल रहे हैं हम दोनों। मैं जहाज उड़ा रहा हूँ और तुम देख रहे हो। कुकू गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। कुकू, कहाँ है आपका उड़ने वाला खिलौना जहाज? जग्गू ने इस बार भी वैसा ही किया। उसने मुझे जहाज से खेलने ही नहीं दिया। मेरा 100 रुपए भी गया। मैंने क्या कहा था आपसे? मुझे तो पहले ही मालूम था। अब चुप कर जाओ और आइंदा उसके साथ कभी मत खेलने जाना। कुकू उदास होकर बैठ जाता है। जग्गू कौवा शाम तक जहाज उड़ाता रहता है और फिर अचानक से जहाज का रिमोट काम छोड़ देता है क्योंकि जहाज की बैटरी खत्म हो गई थी। वो जहाज ऊंचाई से नीचे गिरता है और टूट जाता है। जग्गू परेशान हो जाता है। ये तो टूट गया, बैटरी खत्म हो गई इसकी। मुझे इसे चार्जिंग पर लगाना चाहिए था। दूसरे दिन कुकू की नानो कुकू के पास आती है। नानो नानो, इस डिब्बे में क्या है? बताती हूँ, चुप तो कर जाओ। रानो बेटी, ये लो, मैं आपके लिए बेसन का हलवा बना कर लाई हूँ। ठंड बढ़ गई है, कुकू को 2 चम्मच सुबह को दे दिया करना। नानो बताइए ना, डिब्बे में क्या है? लो, खुद ही खोल कर देख लो, इसमें आपका खिलौना है। कुकू बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी से डिब्बे को खोलता है। कुकू की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। उस डिब्बे में उड़ने वाला खिलौना जहाज था। नानो, मेरी नानो, मम्मा देखें, मेरी नानो मेरे लिए जहाज लेकर आई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो कल मैंने और जग्गू ने मिलकर लिया था। अब इसे ध्यान से उड़ाना और चार्जिंग का ख्याल रखना। कुकू अपने घर के बाहर जाकर वो खिलौना जहाज उड़ाने लगता है जो बहुत ऊंचाई तक जा सकता था। कुकू रिमोट कंट्रोल से कभी अपने खिलौने जहाज को ऊपर करता तो कभी नीचे। वो बहुत खुश हो रहा था। ये जहाज किसका है? मैं जाकर देखता हूँ। अपने घर के बाहर बैठा हुआ जग्गू कौवा जहाज को उड़ता हुआ देखकर उस तरफ आता है। कुकू के पास रिमोट कंट्रोल जहाज देखकर जग्गू कौवा हैरान हो जाता है। कुकू दोस्त, तुमने ये कहाँ से लिया है? ये जहाज मेरी नानो मेरे लिए लाई है। ये तुम्हारे वाले से अच्छा है और मजबूत भी। मेरे वाला तो टूट गया। कुकू, मुझे भी खेल लेने दो। क्यों? याद करो तुमने कल मेरे साथ क्या किया था। अब तो मैं कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगा। कुकू अपना जहाज नीचे उतारता है और उसे उठाकर अपने घर चला जाता है और बाहर बैठा जग्गू कौवा बहुत पछताता है। अगर कल मैंने कुकू को अपने जहाज से खेलने दिया होता तो आज कुकू भी मुझे खेलने देता। अफसोस, अब कुकू मुझसे कभी दोस्ती नहीं करेगा। ऐसे सोचकर जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है।